All right, good evening everyone. Myself is Parit Kumar from Lifestyle Fitness Corner. I am a certified wellness coach and nutrition expert, and I welcome you to this online show called Tyagi Talks. So, as a tradition, we will first we will have a Tyagi anthem, and then we will start. So, just give me 1 second and let us enjoy this Tyagi anthem. Hello everybody, good day to you. Some live, some die, some lose it and cry. Some love eat chicken fried, but Tyagi Talks. Some root and sigh, and afraid to even try. Some wither away and die, but Tyagi Talks. Some walk away with their head high, some sit and wonder why. Some look at you, don't say hi, but Tyagi Talks. Some live, some die, some lose it and cry. Some love you chicken fried, but Tyagi Talks. And Tyagi Talks. Okay, so welcome everyone, and I am very much thankful to Mr. Amit Tyagi for calling me here on this show. Thank you so much. Let me introduce myself. Myself is Parit Kumar. I am the CEO of Lifestyle Fitness Corner, and I will मैं अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. So I am so much excited to share my journey. Basically, I started this Lifestyle Fitness Corner since last 5 years. In 2015, we have inaugurated this, and our purpose was, हमारा जो मिशन था कि हम लोगों को हेल्दियर और फिटर बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी और फिट रह सकें. मेरी जो स्टोरी है वो कहीं मेरी फिटनेस से जुड़ी हुई है, तो उसको हमने एज ए मिशन लिया. In 2015, I was quite obese, almost 90 kg person, and lot of disease, high blood pressure, joint pain, and poor digestion, poor skin, everything I was suffering of. Okay, so I came to know about some healthy lifestyle activities and nutrition knowledge and everything, and I qualified this nutrition course, and I worked on me and lost 17 kg, and it was awesome. Now my life is totally changed, and हमने उस मिशन को फिर आगे लिया, और आज हम thousands of people की हेल्प कर रहे हैं around the world, and we are very excited to इस जर्नी को आगे लेके जाने के लिए. So let us start today's topic. So I hope you are also excited as me, and very important topic जो आज सभी के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम बना हुआ है. So first we will talk about obesity, weight loss, and wellness. So the mostly people are India are getting obese, and बड़ी दुख की बात है, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर आज सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन तो हैं ही, साथ में थर्ड हम लोग ओबीस कंट्री बनते जा रहे हैं. एज बहुत फास्ट तौर पे हम लोग ओबीस हो रहे हैं, एंड मोस्टली ओवरवेट पीपल लिव इन इंडिया गाइस. सो एंड वो कौन हैं? वो हम ही लोग हैं, वो पॉपुलेशन हम ही से बनती है. तो ये सभी लोग हम लोग हैं, और हम लोगों में ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं. एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग, और इसके आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. सो when you are obese, so you have lot of health problems. Entire body get weaker, bones are weaker, so you can suffer by the knee pain and joint pain, skin problem also there. Heart attack comes through obesity. The higher rate goes with the जिनका वेट ज़्यादा होता है, या जो ओबीस कंडीशन में होते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे आज सब लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ डायबिटीज़ गाइज. आज हम लोग वर्ल्ड कैपिटल हैं डायबिटीज़ में. आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस फेज़ में जा रहे हैं. इंडियन खाना कभी बहुत अच्छे तौर पे माना जाता था कि हम लोग बहुत अच्छा मील खाते हैं, और आज वही लोग सबसे ज़्यादा बीमारी की रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं. एंड आप चाहें तो मेरा कभी भी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं. सो यू कैन टेक माई कंसल्टेशन. एंड अगर हम ओबेसिटी को देखें तो आज ये वर्ल्ड एपिडेमिक बन चुका है. ओके, एंड करीब एक अजम्पशन है कि 2050 तक इस वर्ल्ड का लगभग बहुत बड़ा पॉपुलेशन ओबेस होने वाला है, और वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने वाला है. अब ये बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, देखिए. जैसे हमने डायबिटीज़ की बात की. डायबिटीज़ का मेजर रीज़न क्या है? आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड हैबिट. आप किस समय जागते हैं, किस समय खाते हैं, आप क्या खाते हैं,
क्या आपका समय सही है, क्या प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने की ज़रूरत होती है। एंड मोस्टली लोगों को मैंने देखा है मेरे बहुत से नेबरहुड में और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स जो आज बहुत सारे बोन पेन, जॉइंट पेन से परेशान हैं। लॉट ऑफ पेन किलर्स दे आर ईटिंग, बहुत सारा पेन किलर वो खाते हैं, बाद में पेन तो ठीक होता नहीं है, साथ में वो एक डिसीज़ और लेके, या तो डाइजेशन का डिसीज़ या किडनी डिसीज़ लेके फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें क्यों करनी है? अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अगर हम सोचें कि हम अगर अच्छा खाना खाएं, अच्छी तरह से अपना लाइफ को एंजॉय करें, तो आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। वो टिप्स मैं आपको दूंगा आज। अगर हम देखें डायबिटीज़ में हम वी आर द वर्ल्ड कैपिटल। ज़रूरत नहीं है हमें वर्ल्ड कैपिटल बनने की, जस्ट हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। एंड अदर फर्दर डिसीज आर देयर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज आपको बहुत सारी हो जाती हैं। एंड हार्ट अटैक इज ए मेजर रिस्क, और कैंसर्स देयर लॉट ऑफ स्टडीज जहाँ ये शो किया गया और बताया गया है कि ड्यू टू ओबेसिटी बहुत सारे फॉर्मल कैंसर जो है फीमेल और मेल बॉडी में दोनों में आ रहे हैं, क्योंकि जब आपके बॉडी के सेल्स इन्फ्लेमेट होते हैं डिसीज को लेके, वो किसी भी सेल के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, तो आप कैंसर के पेशेंट बन सकते हैं। तो कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं? एंड माय नेक्स्ट टारगेट इज मिस्टर त्यागी। एंड वी हैव टेकन द टारगेट कि अभी उनका 30-40 kg के आसपास हमें नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वेट लॉस कराना है। ऑल्दो इन हिज फैमिली फ्यू पीपल आर लूजिंग वेरी गुड वेट एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। सो वही टारगेट हम त्यागी जी के साथ भी लेने वाले हैं। सो नाउ अभी आपको करना क्या है, छोटा सा ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप और फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को। आपको जस्ट अपनी लाइफ को देखना है कि किस तरह से आप जी रहे हैं। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ मॉर्निंग का, आपका किस समय आप उठते हैं, रात को किस समय आप सोते हैं, क्योंकि आपका नींद ठीक नहीं है तो आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं होता है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा नहीं है तो आप ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। आपका फूड का कलेक्शन क्या है, क्या आप खाते हैं, तो आप टिप्स ले सकते हैं। आपके फूड के अंदर जो कंटेंट होना चाहिए दैट शुड बी आपका 30% प्रोटीन इंटेक आपको आपके प्लेटर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, आपके होल डाइट के अंदर। एंड 40% आपके हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर द हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स? आपको फाइबर बेस्ड इंटेक ज़्यादा करना है। एंड हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स में आपको ओमेगा 6 को थोड़ा सा रिमूव करना है और ओमेगा 3 की तरफ जाना है। गाइस ओमेगा 6 की पहचान क्या है, मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। ओमेगा 6 वो फैट है जो सैचुरेट फैट की कैटेगरी में आता है। वट एवर फैट आपके रूम टेम्परेचर पे अगर वो जम रहा है तो दैट इज सैचुरेट फैट, ओमेगा 3 फैट। उसको आपको कम, ओमेगा 6 फैट उसको कम करना है, बिकॉज वो आपकी आर्टरी और आपके बॉडी ऑर्गन्स को जाके डिपॉजिट होना शुरू होता है। लेटर ऑन यू स्टार्ट विद ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बाद आपको कार्डियो पे प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियो के बाद आप फिर आ जाते हैं बहुत सारे हार्ट हेल्थ को लेके परेशान रहते हैं। कब या तो हार्ट फेलियर की शिकायत होती है, हार्ट अटैक का कंडीशन बन जाता है। तो दीज आर द कंडीशंस तो ये प्लेटर अगर हम डिजाइन करेंगे अपना 30 और 40 का, सो यू विल बी गेटिंग ए प्रॉपर डाइट। एंड गाइस इसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ में आपको अपने रेस्ट पर ध्यान देना है कि रेस्ट कैसे करेंगे, कितना रेस्ट करना है। 6 to 7 आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं सो गाइज आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एंड कितने लोग आप में से वर्कआउट करते हैं ये आपको देखना है, बिकॉज आपकी 100% फिटनेस को लेकर आपका 20% वर्कआउट का रोल है, 80% इज रोल ऑफ आपका डाइट का है। डाइट में मैं न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको भी, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, सो आई विल बी गेटिंग यू मोर इनटू न्यूट्रिशन एज वेल। ओके, सो 20% वर्कआउट में आप अपनी बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से, बॉडी की सिचुएशन के हिसाब से आप एक वर्कआउट प्लान अपना बनाएं। ओके, वेदर यू स्टार्ट विद वॉक से स्टार्ट करिए, जॉगिंग से स्टार्ट करिए, आप जिम जा सकते हैं आपके नियर बाई। ऑल्दो इन कोरोना पीरियड जिम आर लॉन्ग, जिम एट होम। मैंने इस कोरोना काल में, इस कोरोना पीरियड में अपने घर के अंदर छोटा सा जिम रेडी किया है। ओके, एंड लॉट ऑफ माय पीपल आर हियर, जो लोग हमारे मॉर्निंग जिम में हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, वी आर एंजॉइंग द लाइफ। ओके, एंड दूसरा जो आपको देखना है, वेन एवर यू हैव टू डिसाइड योर आवर्स फॉर योर वर्कआउट। ओके, सो ऑल्दो मोस्टली पीपल आर वर्किंग, दे आर हैविंग ऑफिसेज एंड जॉब्स एंड बिजनेसेस, सो उनको क्या करना होता है, उनको टाइम नहीं मिलता है, दे डोंट गेट द टाइम। ओके, इन दैट टाइम आपको कम से कम 45 मिनट्स का वर्कआउट तो अपना डिजाइन करना चाहिए गाइस। इट इज वेरी यूजफुल, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपकी बॉडी को टोन करता है, आपके मसल्स को टोन करता है, आपकी बेटर शेप में आपको हेल्प करता है। एंड लॉट ऑफ आप जब अपना पसीना बाहर निकालते हैं, यू लूज लॉट ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, एंड टॉक्सिन को निकलना बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में इस का क्या रोल है, आपके वर्कआउट का क्या रोल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
This is the information about your diet. Okay, 80% role in your 24 hours time and your diet is your diet. Okay, so डाइट के अंदर आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया 30% आपका प्रोटीन, 40% आपका कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाना है. ओके, मोस्टली पीपल ट्राई टू यूज बंस, पिज्जा, बर्गर, है ना, रस्क, इस तरह की चीजें खाते हैं ब्रेकफास्ट में. तो दोज आर नॉट हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, दोज आर वेरी प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, रोटी, चपाती, इस तरह के ये सारे प्लेन कार्बोहाइड्रेट में आते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं करते हैं. बिकॉज प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स इट इज नॉट ईजी टू डाइजेस्ट एंड वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होते हैं. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज यूज फॉर एनर्जी. अब एनर्जी कैलोरी के तौर पे अगर आपके बॉडी में डिपॉजिट होगी तो दैट कन्वर्ट इनटू फैट एंड यू आर गेटिंग ओवरवेटेड. सो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाना है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलेंगे? मोस्टली वेजिटेबल्स, मोस्टली ग्रीन वेजीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, जितने हमारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको आपको ज़्यादा यूज़ करना है. आप एक टिप लिख सकते हैं, सुबह का आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, दिस शुड बी विद 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन कम से कम आपको मिलना चाहिए. आपका एक प्लेटर होना चाहिए 11 से 12 बजे के बीच में, जो एक इंटरमिनेंट मील के तौर पे आपको यूज़ करना चाहिए. देन आपका लंच होना चाहिए, विद दैट यू मस्ट हैविंग ग्रेट स्नैक्स एंड लिटिल बिट चपाती. तो आपका वहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है. 4 to 5 PM आप एक अच्छा डाइट ले सकते हैं कि स्नैक्स के तौर पे उस टाइम फाइबर का मील आप ले सकते हैं. नाइट मस्ट बी लाइटर मील. अगर आप रात में हैवी मील लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी इंडियन डू, हम लोग क्या करते हैं, सुबह हम कम खाने की कोशिश करते हैं, दोपहर को ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, रात को सारा कुछ खाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रियली बैड. ओके, सो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है. आपका जो मॉर्निंग का नाश्ता, अभी मैं क्योंकि यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यूपी में कहावत है कि सुबह का जो नाश्ता है वो महाराजा वाला होना चाहिए. ओके, उसके बाद जो दोपहर का खाना है वो राजकुमार वाला होना चाहिए, और जो आप रात को डिनर करते हैं वो बैगर वाला होना चाहिए. ओके, सो उसमें क्यों एक टर्मिनोलॉजी लगाई गई है कि वॉट एवर यू ईट इट गिव्स यू, है ना, एक एनर्जी देता है और आपको बॉडी शेप देता है और आपको वाइटलिटी देता है. तो कहा जाता है कि जैसा आप खाते हैं वैसा आप बन जाते हैं. सो यहाँ पर आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है. ठीक है. तीसरा, आपको जो फैट्स की हम बात कर रहे हैं, फैट्स में आपको हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स को आपको सेलेक्ट करना है. एवोकाडो आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश यूज़ कर सकते हैं. फिश के अंदर अच्छा ओमेगा 3 होता है. वॉलनट्स आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ओमेगा 3 आपको मिलता है. तो मेक ऑल दीज थिंग योर डाइट पार्ट. ओके, तो आप इन चीज़ों को जो है ज़्यादा कंज्यूम करें, रादर देन आप कैलोरीज और फैट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करने की. ज़्यादा कैलोरी खाएंगे तो ज़्यादा देर तक एनर्जी लगेगी, ऐसा नहीं है. आपको न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है, आपको न्यूट्रिशन से ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात की. सो फाइबर डाइट आपको लेना चाहिए. ओके, अब आपको प्रोटीन कैसे पूरा करना है. बहुत से लोग मिल्क प्रोटीन पे जाते हैं, बहुत से लोग वे प्रोटीन पे जाते हैं. वॉट एवर प्रोटीन यू वॉन्ट टू टेक, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वॉट प्रोटीन यू आर टेकिंग इट मस्ट बी 30% इज अ प्लेटर पार्ट. तो आपकी कैलोरी अगर दिन भर में 1500 कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं तो कम से कम उसका 30% मीन्स 500 कैलोरीज तो आपको प्रोटीन का इंटेक करना है. तो आप उसमें एगिटेरियन हो सकते हैं, अगर आप नॉन वेज यूज़ कर सकते हैं नॉन उसके लिए, या आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारी और चीज़ों में आपका प्रोटीन मिलता है. ओके, सोया के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, आप उसको अपना डाइट पार्ट बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली हैं. ओके, सो इसके आगे चलते हैं हम कि आपको वेट लॉस कैसे करना है. ओके, सो गाइज आपको सबसे पहले समझना है कि आपके दिन भर का कैलोरी का खर्चा कितना है. मीन्स आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है, BMR कितना है, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. गूगल में फॉर्मूला अवेलेबल है, वो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपको अपना BMR आपका जरूर पता होना चाहिए. तो वॉट एवर योर BMR इज, इट मीन्स योर बॉडी इज हैविंग कैपेसिटी टू बर्न योर कैलोरीज. ओके, सो BMR के हिसाब से अगर आप अपनी कैलोरी को मैनेज करेंगे तो आप वेट लॉस कर पाएंगे. अब आपका वेट लॉस आपको करना है तो BMR से अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ओवरवेट होंगे, नेचुरल, बिकॉज अवर बॉडी इज लाइक एक बैंक अकाउंट की तरीके से है. वॉट एवर यू उसके अंदर डालेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो जुड़ेगा, और अगर आप उसको ज़्यादा खर्च करेंगे तो कम होगा. तो हमें क्या करना है, जितना हमारा बॉडी खर्च करती है उससे थोड़ा सा कम डालना है. ओके, थोड़ा सा कम डालना है, और वो जो रेस्ट पार्ट है वो भी आपका लिक्विड से आपका पूरा हो जाता है. ओके, सो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. तो BMR अगर आपका 2000 कैलोरीज है तो आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप 200-300 कैलोरी की डाइट डाउन करिए. एकदम से 1000 कैलोरीज डाउन मत करिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील होगा, आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी. आपने डाइटिंग का नाम जरूर सुना होगा बहुत से लोगों ने. डाइटिंग क्या है? डाइटिंग इज आपके BMR से एकदम कैलोरी आपकी रिड्यूस कर दी जाती है, विच इज़ मोर रिस्की
आप ओवरवेट हैं विच इज रिस्की, एंड अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं विच इज मोर रिस्की, क्योंकि होगा क्या, वॉटेवर आपने लिया आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन सप्लाई थोड़ी बहुत जा रही थी वो बिल्कुल भी नहीं जा रही है। ओके, सो होता क्या है कि आप वहां से जो लेते हो खर्च भी उतना नहीं है, और खर्च ज्यादा आपका इंटेक उतना नहीं है, खर्च ज्यादा कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा खर्च भी आपको दिक्कत कर सकता है। बैंक अकाउंट में आपके कम पैसा रहेगा, अब जब वो कम पैसा रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, आपको जब भी खर्च करना है तो कहाँ से लाओगे। इस तरह से हमारी बॉडी है, तो रिक्वायर्ड फैट आपकी बॉडी में होंगे, रिक्वायर्ड कैलोरीज होंगी, तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, आपको अपने अकाउंट को बैलेंस रखना है। तो दिस इज फॉर वेट लॉस। ओके, सो वेट लॉस में आपको एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जरूर कि आप अपने मसल मास को बढ़ाइए, आपके फैट्स को रिड्यूस करिए, उसको कम करिए, और अपने मसल्स को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आपके बदन में मांसपेशियां होंगी गाइस, उतना लंबा आप जीने वाले हैं, उतना हेल्दियर आप जीने वाले हैं, और उतना ही ज़बरदस्त आप अपने वेट को मैनेज करने वाले हैं। हर इंसान को सुंदर दिखना पसंद है, हर इंसान को स्लिक दिखना पसंद है, अपनी जीन्सेस अच्छी आनी चाहिए ना, और सही फिटिंग में होना चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू लुक लाइक अक्षय कुमार, एंड अगर फीमेल्स की बात करें तो कटरीना कैफ, है ना, एवरीबडी वांट्स टू, बट हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो कुछ माइंड हैक्स हैं हमारे, कुछ हमारा टेस्ट बर्ड है जो हमें परेशान करता है। वो क्या है? वो हमारा जंक फूड है। जंक फूड आपको बहुत टेस्टी तौर पे सर्व किया जाता है, उसको आपको धीरे धीरे रिड्यूस करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट हेल्दी। नॉट ओनली वेट लॉस में तो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, साथ में आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके बॉडी में आपको जिंदा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इट क्रिएट बेटर बैड एनवायरमेंट फॉर देम। ओके, दे फील बैड, एंड आपके फेस पर भी वो सारा निकल के आता है कि आप यू फील वेरी सैड। दिन भर में आप सुबह उठते हैं तो सुस्त उठते हैं, शाम तक सुस्त रहते हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी को जो चाहिए, बॉडी के अंदर जो जाना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। अब जैसे आपकी कार है, यू ड्राइव योर कार, सो इफ योर कार इज रनिंग बाय पेट्रोल, सो यू कांट यूज केरोसिन ऑयल to run your car. Guys, you need to understand. And whatever is happening now, आप जो जंक फूड खा रहे हो, जो पिज्जा खा रहे हो, जो बर्गर खा रहे हो, इट ऑल जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज, एवरीथिंग, टिक्की छोले, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जंक फूड है। लेटर ऑन वी कंप्लेन, सर हमें तो डायबिटीज हो गया, सर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, सर बैक पेन बहुत है, सर लेग पेन आ गया है, सर वो पेन किलर्स हमें खाने से पहले खाना पड़ता है, सुबह उठते पेंटासिड लेनी होती है। सो आपको छोले भटूरे बंद कर रहे हैं, रादर देन आपको अपना बाकी चीज़ों को भी तो ठीक करने की ज़रूरत है। एंड वाटर, आप में से पता नहीं कितने लोग कितना पानी पीते हैं, बट एज अ थंब रूल 20 kg वेट पर आपको 1 लीटर ऑफ वाटर का इंटेक आज से ही शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज जितना आप पानी पिएंगे उतना आपका डिटॉक्सिफिकेशन बेटर होता जाएगा। एंड जितना आप बेटर डाइजेशन करेंगे गाइस, उतना डिटॉक्सिफिकेशन बेटर होगा। जितना डिटॉक्सिफिकेशन बेटर होगा, स्किन ग्लो करेगा, एंड स्किन ग्लो करेगा, लोग नोटिस करेंगे, तो आप सभी को पसंद होगा कि लोग आपको नोटिस करें, वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट अ फिगर, व्हाट द पर्सन इज गोइंग, एवरीबडी वांट्स कि लोग उसको अट्रैक्टिवली देखें। लेकिन होता क्या है, लोग देखते हैं, अरे बाबा ये तो बॉडी बहुत खराब है, बहुत ओवरवेट है, इसका तो पेट भी बहुत बाहर है, आगे से भी पीछे और पीछे से भी दोनों जगह से बढ़ा हुआ है, आर्म से बहुत फैट है। ओके, सो क्या होता है, एंड दे सी यू सिटिंग इन बार्स, कभी पिज्जा बार में आप बैठे हो, कभी आप ड्रिंक बार में बैठे हो, कभी आप पास्तास खा रहे हो। सो यू नीड टू रिड्यूस ऑल दीस थिंग्स। आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट क्लोज इट, ओके, जस्ट टू जंक भी कई बार जरूरी होता है, बट जस्ट फॉर टेस्ट, नॉट फॉर आपको उसकी हैबिट होनी चाहिए। एंड मोस्टली जो डाइट आज के समय पर है, बिकॉज वी आर नाउ, हम लोग वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, तो हम लोग इंडियन थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, व्हाट टू ईट व्हाट टू नॉट ईट। ओके, अभी हम लोग अपनी जो नेचुरल डाइट थी उसको लूज कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न डाइट है उसको अपने लाइफ में एंटर कर रहे हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, एंड दे स्टार्ट यू स्टार्ट ईटिंग कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, ऑल दीज थिंग्स, बस जस्ट विद द एडवर्टीजमेंट। सो आपको समझने की जरूरत है। एंड रेस्ट पार्ट आपको क्या करना है, रेस्ट आपको करना है कि आपको हेल्दी मील प्लान अपना बनाने की ज़रूरत है। अब हेल्दी मील प्लान आपका कैसे बनेगा? वेरी सिंपल, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने हेल्दी मील प्लान के लिए अपने BMR को समझ के अपना कैलोरी को डिज़ाइन करना है। यू मस्ट नो चपाती में कितना कैलोरी है, यू मस्ट नो मिल्क में कितना कैलोरी है, यू मस्ट नो आप जो सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर कितना कैलोरी है, यू मस्ट नो अगर आपने गलती से पिज़्ज़ा भी खा लिया तो उसके अंदर कितना कैलोरी है। ओके, अगर आप पूरा पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो लगभग 1200 कैलोरी का हो गया, अगर आपने एक स्लाइस खाया तो 300 कैलोरी का हो गया, सफिशिएंट। ओके, टी कॉफ़ी आप में से बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो टी कॉफ़ी इज़ वेरी मच रिस्की। अगर आप टी कॉफ़ी यूज़ करते हैं, यू टेक हाई कैफीन विच इज़ नॉट गुड फॉर यू।
सो आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको अपना मील प्लान क्या बनाना है। एंड यू नो सम टाइम यू रिक्वायर अ पर्सन जो आपको गाइड करे आपको क्या खाना है। पहले ऐसा होता था, हमारे जो लोग खाना बनाते थे वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे। अभी जो हमारे खाना बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, वो कौन हैं? वो पीपल जस्ट दे आर जस्ट गिविंग यू द टेस्ट। वो टेस्ट को चेक करते हैं कि टेस्ट कैसा है, मेरा कस्टमर आएगा और वो टेस्ट की तारीफ करेगा। बट व्हाट अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, आपके खाने के अंदर न्यूट्रिएंट कितना है? सो ये सारी चीज़ें आपको अपने खाने के अंदर इवेलुएट करने की ज़रूरत है। नाउ अभी हम चलते हैं वेलनेस की तरफ कि आपको किस तरह की वेलनेस पे आना है। सो ओबेसिटी से हम वेट लॉस से हम वेलनेस की तरफ क्यों आ रहे हैं, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वेलनेस के अंदर ही आपको ओबेसिटी और वेट लॉस और वेट गेन की हम बात करते हैं। और ये एक टर्मिनोलॉजी है, वेलनेस इज ओवरऑल बॉडी वेलनेस। ओके, इसमें आप वेट गेन, वेट लॉस या और जो आपके हेल्थ इश्यूज है उसको टारगेट कर सकते हैं। सो ऑल्दो आपने सुना होगा, बट आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू कि वेलनेस आपको कौन कौन सी मैनेज करनी है। आपको फिजिकल वेलनेस में, जैसे अभी तक मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की, दैट इज अबाउट योर फिजिकल वेलनेस। यू नीड टू हैव रेस्ट, यू नीड टू हैव ग्रेट डाइट, यू नीड टू हैव सम फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, सेकंड वन इज योर इमोशनल वेलनेस। आपको बहुत जल्दी इमोशनली नहीं रहना है, बैड थिंग्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना है, हर चीज़ को लेके एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। अभी कोरोना है तो है, नो प्रॉब्लम। आप क्या कर सकते हैं? आप जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ समवन इज कोरोना पेशेंट नियर बाई यू, सो डोंट गेट अफ्रेड कि सब कुछ मुझे हो जाएगा। नो नो नो, ऐसा नहीं करना आपको। और आपको उन लोगों से ही बचना जो आपके पास केवल दुख और दुख लेके आते हैं। तो you need to improve your emotions, what kind of emotion you have, so you need to control sometime. Okay, तो आपको कुछ समय पे वो सीखना होगा कि आपको किस समय पर क्या करना है, गुस्सा कब करना है, शांत कब रहना है। इट कम्स इन योर मेंटल वेलनेस, और किस समय पे आपको अपने आप को पेशेंस में रखना है। बिकॉज लाइफ इज जर्नी। ओके, ये पल्स की तरह से होता है। कभी आपके साथ हैप्पीनेस होगा, कभी आपके पास सैडनेस होगा। उस समय पर आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, दैट कम्स इनटू इमोशनल वेलनेस। ओके, सो नेक्स्ट इन इंटेलेक्चुअल वेलनेस, आपको लोगों से मिलना जुलना चाहिए। अभी कोरोना काल में तो मैं आपको नहीं बोलूंगा पर्सनली किसी को मिलने चाहिए, बट यू कैन कनेक्ट विद पीपल। सो दिस इज द बेस्ट मीडिया। वी आर लॉट ऑफ पीपल हियर एंड टॉकिंग ईच अदर। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ओवर द जूम वी टॉक विद लॉट ऑफ पीपल। मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन करता हूँ। सो 100 of people are coming there and getting lot of information. Okay, so you may also join there. I will, if you someone asks, so I will definitely share my information to you. Okay, so social wellness, we must be social. हमें लोगों के बीच में सोशल होने की ज़रूरत है। ओके, why to be social? Okay, just take an example. आप रात को आपको कोई पेन हुआ है बॉडी के अंदर, सडनली कोई पेन हुआ है, एंड आपके नेबरहुड में जो पर्सन है वो आपको लाइक नहीं करते हैं, आप उनको लाइक नहीं करते हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्या करना होगा उस समय पर, आपको जस्ट ये करना होगा कि आपको रहना होगा एक सोशल पर्सन, ताकि आपके पास वो आपके सैड समय पे, बुरे समय में लोग आपके साथ खड़े होने वाले हों। एंड वेन एवर आप खुश हैं तब भी आपके साथ लोग हों आपके साथ खड़े होने वाले, क्योंकि हर एक पर्सन को सोशल एनवायरनमेंट चाहिए। वी आर सोशल एनिमल, जो हमें लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो हमारे साथ सुख और दुख में खड़े होते हैं। तो आपको वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल वेलनेस का आप ध्यान रखिए। यू कनेक्ट विद गॉड। ओके, जिनको भी आप पूछते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे कनेक्ट करिए, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ नहीं आपको सिखाता बुरा करना। तो जितना आप कनेक्टेड होंगे तो यू बी मोर हेल्पफुल टू अदर। तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल वेलनेस की तरफ लेके जाइए एंड नेचर से कनेक्ट करिए। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, जो भी आपका कार्यस्थल है, वॉट एवर योर वर्क प्लेस इज, उसको आप देखिए, हाउ मच इट इज हेल्थियर फॉर यू। सो आप जो भी काम करते हैं, जब आप उसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, तो आपको उस काम में मन लगेगा और आप वहाँ अच्छा फील करेंगे। और जिस काम को आप अच्छा करने में अच्छा फील करते हैं, वहाँ आप रिजल्ट भी अच्छे लेके आते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ऑक्यूपेशनल वेलनेस को देखना है। वहाँ के एनवायरनमेंट को चेक करिए। इवन कोरोना में तो काफ़ी सारे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। अगर ये प्रिकॉशन पहले लिए जाते तो शायद कोरोना आज एक्सपेंड नहीं होता। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट वन इज योर फाइनेंशियल वेलनेस। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो गाइस सो आपके साथ प्रॉब्लम रहता है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइनेंशियल वेलनेस की तरफ भी देखना है कि आपकी पॉकेट, आपके फाइनेंसेस, आपके डेट्स, आपके लोन्स, आपके वॉट एवर यू हैव एक्सपेंडिचर, आपका बच्चों की फीस, वॉट एवर, हाउ यू आर मैनेजिंग, हाउ मच यू आर सेविंग बाय दैट। ओके, सेविंग आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। तो ऑल दीज थिंग विल हेल्प यू
to create a great environment for you. Okay, so guys, thank you so much for having me here and listening to such a, you are such a great audience. And अभी मैं अमित जी का थैंक यू बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगा, क्योंकि अमित जी ने आज इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए. एंड सिंस लास्ट 5 years वी आर ट्राइंग टू रीच मोर एंड मोर पीपल टू हेल्प देम in their obesity issues, in their weight loss issues and nutritional deficiency. आज के समय पर nutrition deficiency आपके डाइट में बहुत ज़्यादा है. You can connect with me anytime. I can say you my number. My number is 8572870760, or I will type in comment box. So whatever your question is, you can post in the comment box, or later on we can connect, and definitely we are going to help you. And thank you so much. So आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली आपसे मिलेंगे. और थैंक यू सो मच अमित जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर. टाटा, बाय बाय, नमस्कार.